Dear students and viewers, welcome to new English classes by Akenshah. Dear students, now we are going to study a poem of a CBSE class IX or 9. CBS board ro नवम श्रेणी English poem पढ़िବାକୁ ଯାଉଛେ. The poem is The Road Not Taken by Robert Frost. Poetry section, Unit 7, the book. It is the poem from CBSE class 9 IX that you call नवम श्रेणी सीबीएसई क्लास बोर्ड नवम श्रेणी इंग्लिश पोएम टी द रोड नेट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सम एक्सटेंट वी हैव नोन अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. आम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किसी मात्र जानी जे कि जड़े अमेरिकन पोएट अच्छा भल भाव जानी भेरी पपुलर एंड वेरी वेरी फेमस. प्रथम डिस्कसन करने जाऊे द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन, व्हाट डज इट मीन द लाइन द रोड नॉट टेकन? I mean the road I have not taken or someone has not taken. We just get the clear view about the poem or the line that someone has may not taken the road or may take. कहीं जन हुए तो रोड नहीं पारी नहीं बाछी पारी नहीं कि बाछी. The students, most of the time in our life you always take wrong decision or maybe right decision. Choosing the path of life, whether we have to take or whether we have taken the right path or the wrong path, we are not sure. But we take a chance and thinking that sometimes maybe it may be changed for us, it may be clear for us, it may be perfect for us, but sometimes it makes wrong. Sometimes it makes wrong, it becomes very wrong that we are not satisfied on choosing the road or the path. But here the poet has chosen something different. Through this poem, the poet has clearly mentioned and said that every people has the right to choose the right path, but sometimes you take the wrong path or sometimes you take the right path. But after ages, we must think about the choosing the first road, whether we have taken the right path or wrong path. Through this poem, we just get through the poem. We can know भल जापर जीवन में अनेक समय अनेक किसी डिसीजन नहीं था. प्रथम जीवन रास्ता जो कहते हैं जीवन रास्ता बोली कहचे अनेक समय आम रंग डिसीजन नहीं था केवे तो ठीक डिसीजन नहीं जाइए कि परवर्ती समय जो आम भावु बसिकी बोध हुए मुझे किसी गोटे भल भल डिसीजन नहीं गोटे भल रास्ता चूज कर अनेक समय आम यही दुखरे रही था हाँ बोध हुए मुझे से रास्ताटी न नहीं था से रास्ता न जाती एत बड़ भूल मो जीवन में केवे आसी न था. केवे के मत खुशी होता जहाँ बोधे अतीत अनेक वर्ष तले मुझे डिसीजन इज राइट डिसीजन जैकि मो जीवन में बहुत किसी परिवर्तन आनी देता. बट थ्रू दिस पोएम आम जानवा चाहिए व्हेदर द पोएट हैज टेकन द राइट पाथ और नॉट. थ्रू दिस पोएम वी जस्ट गेट द सेम थिंग दैट चूजिंग द पाथ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. Very very important for everybody that choosing a path for life. Through this poem we just get it and come to the overview point that human life always gets in trouble, dilemma whether to choose the path, either to be right or to wrong. आम रास्ता ठीक कि भूल नहीं अनेक समय मनुष्य जीवन में यह किसी भूल परिवर्तन भी आसी थाई ठीक भी हो पारे भूल मध्य हो पारे. ओके नाउ विल जस्ट रीड अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. विषय टी जाना रॉबर्ट फ्रॉस्ट विषय किए से थे कवि किए आम तो जानी जस्ट लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. आम अधिक जाना पोएट विषय. Robert Frost is an American poet. Janice, he was born 1874 and died 1963 in San Francisco. But spent most of his about life in rural New England, and his laconic language and emphasis on the individualism in the poetry reflected in the rain. Some jati jani gale she is a very famous poet. Attended Dartmouth and Harvard, but never earned a degree. जदियो से डरमाउथ एंड हार्वर्ड वाली यूनिवर्सिटी से अटेंड करते कि कौन सी डिग्री हासिल कर. ओके डियर स्टूडेंट्स आम टाइम वेस्ट करवानी. आम बर्तमान पोएम टी बाय लाइन कवर करवा दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट हैव रिटन दिस पोएम. द पोएट हैज रिटन अबाउट द थीम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ चूजिंग द पाथ. आम भल भाव जापर. चलो आम बर्तमान पोएम टी पढ़ी ना बाय टेक्स्ट को आम कवर कला भल बुझी पार व्हाट हैज द पोएट रिटन द चूजिंग ऑफ पाथ इन ह्यूमन लाइफ. Let us start the text. Two roads diverged in a allotted, and sorry, I could not travel both. Two roads diverged in a allotted. Two roads diverged, separated in a allotted. The students, आम जदि
yellowwood विषय कहबा maybe the autumn season the leaves are yellow. So the poet has just said that yellow woods, maybe the leaves of the woods or the trees there are yellow. So the poet has said like the same thing. बोध हुए जंगल से गछ गुड़िकर पत्र गुड़िक येलो बा हलदिया रही जो कवि एक आलोचना कर येलो वुड्स टू रोड्स डाइवर्ज मीन सेपरेटेड very simple meaning is separated two roads separated in a yellow woods from the yellow wood the two roads diverged. I mean from the yellow woods the roads divided in two way. The roads maybe one road but it divided in two ways. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. The poet said I the poet but sorry I could not travel the both. ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି ଚାଲି ପାରିଲି ନାହିଁ. I could not, nobody can walk in the same time in two way. He wanted to say the same thing. He could not walk in both the roads in the same time. So he said a simple line. Sorry, I could not travel both. The poet could not travel on the both of the roads. Though the road diverged in a yellow woods, I mean the road separated in a yellow woods, where the poet stood, maybe the poet is standing in this yellow wood and watching the tours that diverge from there. Maybe the poet is standing in this yellow wood where the two roads diverged, separated. And be one traveler. And be one traveler. Yes, one man can be the one traveler of a road. I mean, if there is two roads, nobody can in same time walk on the two roads. So at least he has to take at least one road. Yes, जदि आगे आमर आम ठिया होइछा जगह आगे दुईटी रास्ता पड़ी आम एका थरके केबे भी दुईटी रास्ता नहीं पारिबा नाही. एटलिस्ट गोटे रोड आगे जावा मे भी रिटर्न करके आम अन्य रास्ता जाई पारिबा जदि पॉसिबल हुए तो जहाँकि हो पारे न हो पारे से कथा कहते. एंड बी वन ट्राभेलर मु किंतु गोटे रास्तार ट्राभेलर हो पारि पथिक हो पारि मु दुईटी जाक रास्तार पथिक हो पारि नाही. वेरी सिंपली क्लियरली मेंशन इन दिस पोएम. Maybe the poet was standing in the yellow woods where the two roads diverged, I mean separated. The poet chose at least to walk, but it was impossible for him to walk on the both roads, so he decided to walk at least on one. I mean he became one traveler. जेहेतु दुईटी जाक रास्ता आगे पड़ी से केबे भी दुईटी जाक रास्ता अतिक्रम बा चलिक आगे जापरेनि. सो से गोटे रास्तार ही चलने आरंभ कले. बी वन ट्राभेलर आई मीन traveler of one road, not the both roads. Long I stood there. The poet stood there. For the long time the poet was standing there and looked down one as far as I could. And looked down one as far as I could. One road as far as I could. I mean how long the poet was standing there. From there he was looking the one road there. कवि जो ठिया होते सेठू से गोटे रास्ता को अनेक समय धरी चाहिए रहिले देखिले भल भाव में. कवि जो ठिया होते सेठू से दुईटी रास्ता गोटे रास्ता को भल भाव में अनेक समय पर्यटन चाहिए रहिले देखिले भल भाव में. लंग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन आज फार आज को जिते दूर पॉसिबल हो पारे संभव हो पारे से सेठू ठिया होकि चाहिए आग को गोटे रास्ता को भल भाव में गोटे को निरीक्षण करुले. टू व्हेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. To where it bent, it means the road, one road, the first road that he was looking about, that he was searching about. To where it bent in the undergrowth. Undergrowth means maybe the bushes are there, maybe the deep forest is there, maybe the dense forest is there, dense wood is there. Very simply, the poet was standing there looking at least one road as far as possible he could, where this road bent in the undergrowth. I mean hide in the undergrowth. Undergrowth means very simply meaning I am nahi pariba. Undergrowth that is covered with leaves. I mean where the road was going from there it was not clear. रास्ताटी कवि जो ठिया होते से जिते दूर को देखुले रास्ताटी आग को किछि दूर जाइए जंगल भितर लुचि जाइए. I mean not clear. Where there? I mean,
व्हेन अंडरग्रोथ रास्ताटी अंडरग्रोथ रोचे कहबार या थिला जे कवि जो ठिया होते सेठू से ठिया होगी गोटे रास्ता को अनेक दूर पर्यंत चाहिए से पर्यंत चाहिए जो पर्यंत जो पर्यंत रास्ताटी एक जंगल भितर लुचि जाइथिला अंडरग्रोथ थिला अर्थात गछपत्र ओहाड़े रास्ता लुचि जाइथिला आग को रास्ताटी कुआड़े जाइछि ठीक रे जना पड़ु नथिला as the poet was standing there and looked down on the one or at least which bent under the growth I mean the road was not clear from there from the undergrowth the road was not clear where it has gone till that I mean exact same point the poet was able to see the road there सेही पर्यंत कवि रास्ताटी को देखि पारी थिले अंडरग्रोथ पर्यंत से देखि पारुथिले तापर रास्ताटी कुआड़ी जाइछि से ठीक रे देखि पारी नथिले अंडरग्रोथ then took the other as just as a fair then took the other way से फास्ट रोड को देखिथिले सेठी ठिया हे कि दीटा रोटी सेपरेटेड हो जाइछि जोटा कि रास्ता गोटे रास्ता जे कोन हिछि से येलो उठ दीटा सेपरेट हेतवा रास्ता दीटी बा रोड दीटी गोटे रास्ता अच्छे बहुत समय चाहिथिला देखिथिले गोटे रास्ता कोन हिछि एग्जैक्टली अंडरग्रोथ रे लुचि जाउछि जना पडु नहीं तापर कुआडे गला रास्ताटी तापर कवि फेरी आसुछंती सेकंड रोड को एंड टुक द अदर जो रास्ता से प्रथमे छाड़ी देइथिले द्वितीय रास्ता से देखा चेष्टा टुक द अदर जस्ट फायर बहुत सुंदर देखा रास्ता चला द्वितीय रास्ताटी बहुत सुंदर था देखापी एंड हाविंग परहैप्स द बेटर क्लेम आई मीन इट वाज वेरी बेटर टू बी क्लेम्ड it was very better to be climbed I mean than the first road it was very better to be climbed according to the poet कवि कहवा अनुजाई प्रथम रास्ता अपेक्षा द्वितीय रास्ताटी अधिक भल था बेटर था आडमिट कर बेटर क्लाइम आई मीन द सेकेंड रोड वाज फार बेटर फास्ट रोड को देखुले से ठिया कि डाइवर्स पॉइंट रू देखा से चेष्टा करते गोटे रोड को भल भाव में जहाँकि अंडरग्रोथ लुचि जाता जानी ना से रास्ता गला से कभी फेरी आस द्वितीय रास्ता फेरी आस सेकेंड रास्ता को फेरी आसुँच बहुत देखा भल भी था एंड बेटर क्लेम अर्थात प्रथम रास्ता अपेक्षा इट वाज वेरी बेटर बिकज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर इट वाज ग्रासी फुल ऑफ ग्रास वाज देयर एंड वांटेड वेयर आई मीन एज इफ इट वांटेड टू बी वेयर टू बी ओन लोक मैंने बोधे सत्य जमी चलिया आवश्यक पड़ूला जेहेतु घासुआ रही है बोधहुए यहाँ चलवाटा ठीक था यही जना पड़ूला वांटेड वेयर वेरी सिंपली लाइन रास्ता घासुआ थी नॉर्मली आम गोटे हार्ड पाथ रे चलवा गोटे ग्रासी पाथ डिफरेन्स आस फिलिंग आसो आमको जब ग्रासी पाथ रे चलुचे आमको हयतो सॉफ्ट वॉकिंग आसो जब आम गोटे हार्ड पाथ चलते हार्ड वॉकिंग आसपे एक्जाक्टली से कवि चाहूँ जेहेतु रास्ता ग्रासी थी वांटेड वेयर लोक चलवा आवश्यक था प्रथम रास्ता से देखी मे भी ग्रासी नाला द्वितीय रास्ता बर्तमान ग्रासी अच्छे वांटेड वेयर बोली से आडमिट कर द्वितीय रास्ता प्रथम रास्ता अपेक्षा भल था कवि निजे आडमिट कर दो आज फॉर दैट द पासिंग देयर जदि चलवा कथा उठे चलवा कथा को आखिरे रखा जाए हाड वन देम रियली अबाउट द सेम दुईटा रास्ता देखिले एका मत लगुच जब दुईटा रास्ता को देखिया भल भाव में जापर जब ये रास्ता चली लोक आगे जो अधिक चलाबला करवासा करें पारे ये भी सेम लगी था अर्थ कवि भाषा दुईटी जाक रास्ता सेम लगुच केवल गोटे रास्ता ग्रासी थी हम ये रास्ता जिते लोक अधिक चलिक जाना बिकज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर जेहेतु रास्ता ग्रासी थी और चलवा आवश्यक पड़ूला दो आज पर पासिंग कथा चिंता कर बोध हुए ये रास्ता लोक कम जाइए ग्रास अच्छी प्रथम रास्ता ग्रास नाला अर्थात से रास्ता लोक मैंने अधिक जावासा कर वेरी क्लीयर फास्ट रोड जहाँ से चूज करते देखी अनेक दूर पर्यंत जहाँकि रास्ता जाकि कौन से अंडरग्रोथ लुचि जाइए एक्जाक्टली से रास्तार ग्रासी नाला से कहते इंडाक्टली अर्थ से क्लीयर जब मेनसन करना रास्ता एक्जाक्टली से अच्छी द्वितीय रास्ता जहाँकि ग्रासी अच्छी अनवांटेड वेयर कहते ये रास्ता अनेक लोक आगुरी बोधे जाना जदि जाई हे तो रास्ता दुईटी समान लगी था एंड वन देम रियली अबाउट द सेम एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वल ले से दिन सकाल सकाल बोथ दैट मॉर्निंग बोथ रोड्स आर इक्वली ले इन लीव्स and both that morning equally lay सेदिन सकाल सकाल बोथ दैट मॉर्निंग दीटा जाक रास्ता इक्वली ले इन लीव्स आई मीन बोथ रोड्स आर कवर्ड विथ लीव्स
That morning it was very clear that both roads are covered with leaves. No step had trodden black. I mean, no step had trodden black. Trodden black means making black spot by pressing the leaves. If someone walks, when generally we walk on the leaves, it is crossed and or pressed and turned to black. Means both the roads were full of leaves. Nobody had ever walked there. I mean, in that morning, both roads are covered with leaves and no step of, no symbol of walking on any of the roads. ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟାକ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲେ? ଲିଫ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଫ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା ବା କେହି ଚାଲିଯିବାର ଚିହ୍ନ ବି କିଛି ନଥିଲା। ଚାଲିଯିବା ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କ୍ରସ୍ ହେଇଥାଏ ବା ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଟା ଜେନେରାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଟର୍ନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ରାସ୍ତା ସେମିତି ରହିଛି। ଲିଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍ नो हार्ड ट्रोडन ब्लैक, कौन सी प्रकार परिवर्तन है रास्ता गुड़िक एक्जाक्टली सेମିତି मतलब ब्लैक स्पॉट है नहीं। ओ I kept the fast for another day. Remind the fast road. I kept the fast for another day. I the poet. I kept the fast road for the another day. Which is the fast road here? Remember, before sometimes the poet from the diverged path wanted and looked down one road which bent undergrowth, जोटा कि अंडरग्रोथ रे रही बा लुचि जाइए कहीपर मन पका जोड़े रास्ता डाइवर्ज करता एलोउड जोड़े रास्ता डाइवर्ज हो जाता गोटे रू से बहुत समय धरी चाह रही थे अनेक दूर पर देखी रास्ताटी अनेक दूर गलापर हठात जंगल भितर लुचि जाऊँगी ठीक जना पड़ूना गछपत्र ओहारे गचरे लुचि जाइए फास्ट रोड कवि देखी सेकेंड रोड को जहाँकि वांटेड ग्रासी था वांटेड वेयर था एवं से बर्तमान से रास्ताटी छाड़ी दौरान। ओ आई केप द फास्ट फॉर अनदर डे, मु प्रथम रास्ताटी को छाड़ीदेली वेट कली रखिली कहीपर। द पोएट केप द फास्ट वर्ड फॉर द सेकेंड डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग कवि हर जान तथापि जानी कवि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यस, हाउ वे लीड जीवन रास्ता सतरे केमिति आगकु नहीं आमे जानिचे। अनेक समय यह देखा जाइए द वे लीड्स ऑन टू वे वंस लेड नेवर रिटर्न। आम जानीचे जीवन रास्ता थे चूज करके आग गलापर हे तो आउ के पछक फेरबार चान्स ना कुआड़े न कुआड़े से रास्ता केवल आग को जाए। लीड्स ऑन टू वे वंस आम रास्ता नहीं सारीचे हाउ वे लेट्स ऑन टू वे अर्थात आम जदि वंस रोड टेकन वंस द वे टेकन इट नेवर कम्स बैक अगेन रादर इट गोज फॉरवर्ड मे बी टर्न मे बी राइट और मे बी रॉन्ग नो प्रॉब्लम बट इट रन्स अहेड नेवर कम्स बैक। कभी जानी कि भी से डिसीजन ने प्रथम रास्ताटी छाड़ीदे द्वितीय रास्ता से नापी निष्पत्ति कले बट मन में एवं भी सन्देह थिला इफ आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक से सन्देह थे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक मु कौन के फेरी आसी पारि कि जदि मुझे फास्ट रास्ताटी छाड़ी कि जाऊँ इफ आई लीव द फास्ट रोड फॉर द सेकेंड टाइम इफ आई कम बैक अगेन एंड गो बैक ऑन द फर्स्ट वे इज इन डाउट। The poet is completely in doubt, a dilemma stage. If I take the second road and walk there, and after some times, some ages, years, if I come back again, I can take the first one. He is in doubt. Sure भी नहीं जदि मु द्वितीय रूट रे आज चली जीवी आग को पुणी थे फेरिकी आई डाउटेड इफ आई शुड केवर कम बैक मु केबे आउ थे फेरी पारिबी कि आउ थे फेर उद्देश्य कौन थिला मे भी से पुणी थे चाहूले कि जदि सेकेंड रास्ताटी खराब हो मे बी नॉट श्योर मे बी जदि सेकेंड रास्ताटी खराब हो से पुणी थे फेरी आसिकी फास्ट रास्ताटी नहीं पारिबे कि आई शाल बी टेलिंग दिस विथ ए साय यही कथाटी कि से आई शाल बी टेलिंग कहूथी विथ ए साय आई शाल बी टेलिंग विथ ए साय आई मीन द पोएट विल बी सेइंग इन फ्यूचर आफ्टर एजेस आफ्टर सम इयर्स विल बी सेइंग इन फ्यूचर in shy, maybe in sorrow, maybe in satisfaction. In a shy means very simply, not for happily or not for exactly sorrowfully. Even a shy, if he is satisfied there, he will be saying there, it is my good luck that I had chosen the right path. But it is wrong. If he fell on this way, he will be saying that I'm unlucky that really I took the wrong path. He will be telling in the shy से बहुत दुखरे कहूथिबे अनेक वर्ष तले
ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇ ଏ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଠିକରେ ଯାଇଥିବେ ଯେ ସେ କଥା ବି କହୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସତରେ ମୁଁ ଏକ ଭଲ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲି, ଆଜି ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। So both ହେଇପାରିବ, ସାୟ ସେନ୍ସ ଦୁଇଟାକ ନେଇପାରିବା। ଆଇ ସାଲ୍ ବି ଟେଲିଂ ଅନ୍ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସାୟ, ବହୁତ ସାୟର ସେ କହିଥିବେ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସମୟର ଏଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜେସ୍ ହେନ୍ସ, ଆଜିଠାରୁ ସମୟର ଏଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜେସ୍ ହେନ୍ସ, ଆଜିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ କଥାଟା କହୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ଅର୍ ମେ ବି ଆଇ ହାଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ପାଥ୍। ୱିଥ୍ ଏ ସାୟ ହି ୱିଲ୍ ବି ଟେଲିଂ ଦିସ୍। Two roads diverged in a wood. Both roads are diverging in a woods. I took the one less traveled by. I took the path. I decided to take the path once less traveled by. I have told you just before. Less traveled by, I mean on which the most of the people have not walked or had not walked. जो रास्ता less traveled by, I mean on this way the most of the people have not traveled. Did not travel. କାରଣ ସେଇ ରାସ୍ତାଟିରେ ତା ଅର୍ଥ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିନଥିଲେ। ଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ, ଯାହାକି ସବୁକିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲା। ମେ ବି ବୋଥ୍, ମେ ବି ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅର୍ ମେ ବି ଦ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ସେଇଟା ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବାଏ ରାସ୍ତା କବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ। ଆଇ ମିନ୍ ଦ ମେ ବି ଦ ଚୁଜିଂ ପାଥ୍, ମେ ବି ଦ ଚୁଜିଂ ପାଥ୍, ବୋଧ ହୁଏ କବି ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଟିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଅଲ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାଟି ପାଇଁ। ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ପାଥ୍ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ ବି ସୁଖ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ସେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଅର୍ ମେ ବି ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଦ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍। The students, total poem is a metaphorical expression because the poet has given the glass symbols like the metaphor. The whole poem is just a metaphor. We have discussed about this. The whole poem is a metaphor, clearly mentioned. Also there is some personification in this poem. Poem रे किछि personification गुडा अछि, जेमिति कि because I was grassy and wanted air बोली कथा कह जाइतला। जो लाइन टी मेंशन हेछि, एई लाइन टी निश्चित भाबरे कोन रहिछि पिले माने ग्रासी एंड वांटेड अवेयर जो कथा कह जाइए लाइन रे एक्जाक्टली कौन अच्छी आमर पर्सनिफिकेशन कथा उठा जाई पारे जे लाइन रे पर्सनिफिकेशन रही। जो लाइन टे आमर रही पॉइंट आउट कर बिकज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड अवेयर, ए लाइन टे आमर हेई परिबो गोटे पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन आम जानी जे इफ इनएनिमेट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स जिनकी आम एक्सप्रेस करुथिबे फील करुथिबे एनिमेट भली फील करुथिबे एक्जाक्टली सही कथा देख। Through this line, the poet has mentioned I wanted. Wanting sense is demanding to human being or any animate personality. Want करिबा कौनसी गोटे गछ पत्रर काम नुहे, गोटे रोडर काम नुहे, किंतु एटा गोटे मनुष्यर काम हो पारे, पर्सनिफिकेशन हो पारिबो। सो दिस लाइन इज ए पर्सनिफिकेशन। आम तो आउ किछि पोएटिक लाइन कभर करि परिबा, जेमिति कि पोएम रे आउ किछि रहिछि, जेमिति आसोनांश मध्ये रहिछि। पोएम रे देखिबा आसोनांश कोठी रहिछि, डाइवर्ज्ड येलो वुड्स। जो प्रथम कथा रही डाइवर्ज्ड येलो वुड्स कथा कह जाइए, सेठी रही आसोनांस कथा रही डाइवर्ज्ड येलो वुड्स कथा रिमाइंड करवा, ताले रिपिटेशन होती देखा कौन ये रिमाइंड कर डाइवर्ज्ड येलो ओ एंड ओर रिपिटेशन करा जाइए। रिपिटेशन ऑफ भावेल साउंड बोली कह जाए आमर आसोनांस कथा कह जाए, रिपिटेशन ऑफ भावेल साउंड येलो एंड वुड रे ओर मध्य रिपिटेशन होती। सो यहाँ गोटे आसोनांस लाइन रे आसोनांस बोली कहि परिबा। तापर एठी मध्ये किछि इमेजरी मध्ये रहिछि, पोएम टे किछि इमेजरी रहिछि, जेमिति कि टू रोड्स डाइवर कथा कह जाइछि। एटा मध्ये गोटे इमेजरी हेई पारे, गोटे इमेज हेई पारिबो, टू रोड्स डाइवर कथा कह जाइछि। तापर मेटाफर जदि कहबा ताले सेई लाइन एक्जाक्टली जेटा कह जाइछि कि टोटली पोएम गोटे मेटाफर। जो स्टूडेंट्स पोएम टी हमर सरी जाइछि, जदि कहार किछि डाउट रहिछि तमे कमेंट बॉक्स माध्यम रे यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। चेष्टा करछि कि इंग्लिश एंड ओडिया बोथ कम्बाइन करबा पई, मोर विश्वास समस्त पई बहुत इंपोर्टेंट हबो, सहज समस्त बुझी परिबो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।